में आपको जरूर जाननी चाहिए। नंबर 1, भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ही थे। नंबर 2, डॉक्टर आम्बेडकर को लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था। नंबर 3, उन्होंने लगभग 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी और बौद्ध धर्म ने उन्हें काफी प्रभावित किया। नंबर 4, एक बार भीमराव आम्बेडकर ने गुस्से में कहा था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और आखिर अंत में ऐसा ही हुआ। उन्होंने साल 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। नंबर 5, डॉक्टर आम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। नंबर 6, उनके पास लगभग 32 डिग्रियां थी जो भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 7, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई आम्बेडकर था और उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सबिता आम्बेडकर थी। नंबर 8, वो आजाद भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बने थे। नंबर 9, उनकी मौत के करीब 34 साल बाद 1990 में उनको இந்து மதத்தை எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னு அமெரிக்கால ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சத்குருட்ட இந்த கேள்வி கேக்குறாங்க. Pranam Sadhguruji, one program is going on in America dismantling global Hindutva. What is your suggestion to us? நம்ம கூட பிறந்த சக மனிதர்களை ஜாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் அப்படின்ற பெயரால ஒதுக்கி வச்சு அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய சரியான உரிமையை சேர்க்காம இவ்வளவு நாள் நம்ம தள்ளி வச்சிட்டோம். இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை நம்ம எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து அகற்றணும். அதுதான் இந்து மதத்தை அழிய விடாம தடுக்கும் அப்படின்றத மூணாவது பாயிண்டா சொல்லி முடிச்சிருக்காரு. That you do not judge a human being by his birth but by what qualities they possess. If you do this one thing, nobody can dismantle this. நீங்க சத்குரு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை ஆரம்பத்திலிருந்து கவனிச்சிங்களா தெரியும். இல்ல வேதாத்ரி மகரிஷி, வள்ளலார், இங்கிருந்த 18 சித்தர்கள், சுவாமி விவேகானந்தர், ரமண மகரிஷி, அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துல இருக்க ஏற்றத்தாழ்வுகளை சரி பண்றதுக்கு பல வழியில அது உதவி இருக்கும். ஸோ அது எந்த மாதிரிலாம் உதவி இருக்கு அப்படின்றத டீட்டெயில்டா வரப்போற வீடியோக்குள்ள நம்ம கண்டிப்பா பேசுவோம். அரசாங்கம் கொடுத்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலாவது எல்லாரையும் வந்து கோயிலில் அனுப்பு, யார் வேணாலும் பூஜை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சத்குரு சத்கிவாசி அவர்கள் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா? என்னைக்காவது அவர் சொல்லியிருந்தா பாராட்டிருக்கலாம். ஓ அப்படியா, பாராட்ட போறீங்களா? அனைத்து சமூகத்தினரும் அர்ச்சகர் ஆக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அதுல உங்க பார்வை என்ன? ஒரு காலத்துல இப்படி இருந்தது. போர் வீரன் ஆகணும்னா நீங்க கத்திரியனா தான் இருக்கணும், இல்லன்னா உன்னால அதெல்லாம் பண்ண முடியாத நிர்ணயித்து வச்சுட்டாங்க. இது அடிப்படையா எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு தொழில இருந்தவங்க ஒரு ஜாத்தியை ஆயிட்டாங்க போக போக. இப்போ நமக்கு நீங்க சோல்ஜர் ஆகணும்னால நீங்க போய் அந்த ட்ரைனிங் பண்ணீங்கன்னா நீங்க சோல்ஜர் ஆக முடியும். நீங்க சத்திரியனா, நீங்க பிராமணனா, இன்னொன்னா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. இதே விதமா இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண முடியும். விஷ்ணு கோயிலனா எப்படி பண்ணிக்கணும், சிவன் கோயிலனா எப்படி பண்ணிக்கணும். நீங்க 4 வருஷம் ட்ரைனிங் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த குலம் இருக்கட்டும், எந்த ஜாதி இருக்கட்டும், எந்த மதம் இருக்கட்டும், அவருக்கு இந்த ஒரு தன்மை பத்தி ஒரு ஆர்வம் இருக்குதான்றதானே முக்கியமானது. ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. பக்தி இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், பயிற்சி இருக்கணும். அவர் சொல்லியிருந்தா பாராட்டிருக்கலாம். இப்ப சத்குரு பாராட்டி ஒரு வீடியோ போடுறீங்களா? லா இலாஹா இல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் மாஷாஅல்லாஹ். मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हलालखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलाम आजाद है जी। हम भी बख्श बिरादरी से हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले जात होते हैं। पक्खों की काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। स्टील की बर्तन होती है, ला करके इसको हम लोग बना करके फिर रोड पर जाकर हम लोग इसको बिक्री करते हैं। तो बाकी जो बिरादरी है, जो सैयद है, किसान है, ये लोग क्या बक्कों के जो काम को या बक्कों की बिरादरी को नीचे समझते हैं? एकदम नीचे समझते हैं। एक सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, भिन मानते हैं। ये तो घर घर का है, जिससे पूछेगा आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जात पात है? हाँ, जात पात अभी है। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए और एक साथ, और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात नहीं, वहाँ ये सब भूल जाइए। वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं,
मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और वो क्या बोलता है शोषण आ जाता है आगे में। यानी कि जो इस्लाम का पैगाम था मसावात का, बराबरी का, वो समाज में अभी तक यहाँ अपना नहीं पाए हैं। डॉक्टर इकबाल को लगा था, जिनका सारे जहाँ से था हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है, उनका एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। काम सेम रहा, धर्म बदला और धर्म भी उन्होंने कुछ चाह में बदला था। वो चाह ये था कि चूंकि वहाँ अनसिटेबिलिटी था, वह अस्पृश्यता था, जिसके वजह से वो चाहते थे कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ उठे बैठे, और वहाँ वो लोग उनको दरकिनार रखते थे। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, है नहीं, मुसलमानों के मनोवादी लोग जिन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम करके रखा, और लिखा हुआ है हमारे यहाँ अहमद रजा खान साहब ने फतावा रिजविया में लिखा कि अगर ये जुलाहा और हायक, है नहीं, और क्या कहते हैं कसाई और नाई और धोबी, ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये आलिम भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, तब भी ये सैयद के बराबर के नहीं हो सकते, शेख के बराबर के, ये सुरफा के कुफू नहीं, यही लाइन है। ऐसा है, कब्रिस्तान भी अलग है और दलित मुसलमानों का मस्जिद भी अलग है। आप लोहरदगा में एक 15 बस्ती है जहाँ की आबादी करीब 100 घर से ज्यादा पमरिया लोग बसते हैं। वहाँ पर ही लोग ने उसको मार धार के भगा दिया और कहा जुमा के नमाज में कि पमरिया लोग तुम पीछे जाओ, आगे नमाज पढ़ेगा। उस पर इन लोग ने कुछ मारा पीटी हुआ, अंत में ये हो गया कि लोग एनसीसी से जुड़ गए, मारा पीटी किए। तब अंत में लोग कहा कि कितना हम लोग लड़ेंगे, तो वो लोग ने पमरिया बिरादरी की मस्जिद अपने अलग बना लिए, है नहीं। वो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, तो उस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए वो मुसलमान हुए, है नहीं। और आज भी उनको मस्जिद में बराबरी में नमाज पढ़ने के लिए उनको सीपीआई एबल का सहारा लेना पड़ता है। ये जो फॉरवर्ड मुसलमान है अपने दलित भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम सीपीआई ज्वाइन कर क्या हो तो नमाज पढ़ने देंगे, नहीं तो तुम मस्जिद से बाहर हो। मुसलमानों के लाख से छुआछूत है, ये है मुसलमानों में। हमारे गांव में खुद कब्रिस्तान अलग है, हमारे पमरिया कब्रिस्तान अलग है, मंसूरी कब्रिस्तान अलग है, सैयदों कब्रिस्तान अलग है, धुनिया कब्रिस्तान अलग है, और लोग कहते हैं अनटचेबल नहीं है। हिंदू जब मुसलमान को टारगेट करके हिंदू पोलराइजेशन करता है तो नेता तो उसका ब्राह्मण ही बनता है। तो मुसलमान जब पोलराइज होता है तो नेता तो सैयद ही बनता है, नहीं तो कोई तो शेख या पठान ही बनता है। जुलाहा को कहाँ कौन नेता मानता है। ये एक और चीज बताइए कि जो बीजेपी का जोर रहा बीच में और हिंदू भी अपने साथ रखे, तो ये कौन कौन लीडर हैं और उनकी क्या कास्ट है? तो टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग, ये लोग टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। बिहार में गए जो अनवारुल हक शेख बिरादरी के थे, सैयद शाहनवाज तो जानवे के थे सैयद हैं। फिर आरिफ मोहम्मद खान गए, खान है। फिर नजमा अब्दुल्ला के वो सैयद हैं। दोनों तरफ से उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं। एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और सांप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग। तो ये तो मामला है। हमारा पसमानदा मुसलमान कभी ना कॉमनल था, न कॉमनल है और न हमारे यहाँ की ऐसी ट्रेनिंग है। तो ये जात पात हमारे उलमाओं का दिन है, हमारी दिन नहीं। हम तो डॉक्टर नूर हसन आजाद, मुमताज आलम साहब है। बाद में पता चला कि हम तो पमड़िया हैं। वो असल में ये है कि मुसलमानों का जो 85% आबादी है वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ जो इंडिया में पोजीशन है, आज ही पसमानदा मुसलमान के टोटल समझिए पसमानदा मुसलमान है, और ये 20% या 15% ये फॉरवर्ड मुसलमान ये टोपी की तरह से पसमानदा मुसलमान के सर पर बैठ गए हैं और काम इससे लेते हैं। टोपी बन गए हैं और काम लेते हैं इससे।
This Varna, as far as I can see in the present day, I think it is even today very relevant. Those who can carry the tradition of the Shastra like a psychologist, and he gives reasons for that. He says, such a hatred for the Atman residing in other bodies, Mamatma Parategeshu, the Atman residing in other bodies. Why a person develops hatred for that is because of Ahankara, ego, extreme ego, Balam, strength, because I have the power, I have the strength, Darpam, because I am vain, I am conceited, then Krodham, vengeance, Kamam, lust. You take any Indian village where there is a dominant caste and where there is a marginalized caste. The relation between these two jatis, when it becomes negative,
If a social psychologist is to go there and really study the phenomenon, then he or she would come to the decision that the reason for such abusive relationships between communities is not because one community belongs to the Aryan and another community belongs to the Dravidian, but it is because of these 5 psychological reasons. So, if we use actual